Welcome to Janta's video, and we will be talking about Axis Bank CSR initiatives today. Sorry, I've been trying to record this and this is not being recording, so this is my third or fourth attempt, but anyway, let me see. I hope so this attempt is successful. Okay, so we'll be talking about Axis Bank. हम लोग आज की वीडियो में Axis Bank का बारे में बात करेंगे और Axis Bank का CSR initiatives का बारे में बात करेंगे. तो मैंने एक शेयर किया था आप लोग का साथ पहला. आई हैव शेयर्ड समथिंग अबाउट एक्सिस बैंक अर्लियर विथ यू ऑल ऑल्सो. ठीक है, होप सो आई हैव गॉट दिस ओपन हियर विथ मी एज टू व्हाट इज एक्सिस बैंक. Okay, corporate profile. So basically I've got a corporate profile open here, the Axis Bank corporate profile. So corporate profile I have shared with you earlier. As you know, as most of you all must be knowing about Axis Bank, I don't need to any introduction to Axis Bank per se. It is the third largest bank. ठीक है, ये this is the Axis Bank वेबसाइट लोगो एंड नेम एक्सेट्रा. ठीक है, और यहाँ पे उसका कॉर्पोरेट प्रोफाइल है. ये डॉक्यूमेंट मैंने आपका साथ शेयर किया था. यू कैन गो थ्रू इट अगेन. ठीक है, एक्सिस बैंक इज द थर्ड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया, एंड इट according to its own statistics about 5% of the market share, roughly about 5% of the market share. It manages about roughly about 5% of the market share. You can have a look at these things here. Axis Bank is the third largest private bank in India with a balance sheet of about 16,000 crores, having market share of about 5.3 in total assets, 5.0 in total deposits, and 5.4 in total advance, serving about 5.9 million customers. It has about 1,400,000 employees. तो ये important चीज़ है कि एक्सिस बैंक का पास 1,00,000 एम्प्लॉय से ज़्यादा है, 1,04,000 एम्प्लॉयज़ है एज ऑफ 31st March 2025. वाई आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू आर प्लानिंग टू डू अबाउट एनी एम्प्लॉय गिविंग स्कीम, सो रिमेंबर दिस 104,000 employees they've got, or rather no sorry, it's 104,000 employees, so which is about 1,00,000 employees are there उन लोग के पास. ठीक है, 1,04,400 एम्प्लॉयज़ है उन लोग के पास. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉय गिविंग वर्कशॉप और एनी सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉय गिविंग इनिशिएटिव you want to do. Please look at Axis Bank. It has a large number of employees, third largest private bank in India. उसका CSR बजट यहाँ पे नहीं दिया गया है, पर CSR बजट इसका 250 करोड़ का आसपास है. आई थिंक लास्ट ईयर CSR बजट वॉज समथिंग लाइक 202 crores. ठीक है, एज्यूमिंग दैट दिस ईयर CSR मतलब 23-24 का उन लोगों ने CSR बजट नहीं डाला है. ठीक है, बट माई एजम्पशन इज दैट इज अबाउट 225 to 250 crores. आई थिंक या हियर देयर इज सम डिटेल्स ऑन दैट CSR बजट का बारे में. यू ऑल्सो कैन गो सी. द आइडिया of doing these type of videos is that you can yourself later on go and study some of the large companies in India and understand what is their CSR spend like and what are the things they are on. ठीक है, and if you see एक्सिस बैंक CSR 2021 में उन लोग का 90 करोड़ था, 21-22 में उन लोग का 138 करोड़, 22-23 में 202 करोड़ था. यानी कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फास्ट ग्रोइंग. पार्टनरशिप करने से अच्छा रहता है. इफ आवर पार्टनर्स कीप ऑन ग्रोइंग फाइनेंशियली इट बेनिफिट्स अस. सो माई एजम्पशन ऑल्सो, although 23-24 figures are not here, it would be in the range of about 225 to 250 crores. ठीक है, looking at the growth we are seeing in Axis Bank CSR spends. ठीक है, but figures of 20 to 23 is 202 crores, which itself is a big amount. ठीक है, now how does Axis Bank do CSR? Basically, Axis Bank has a foundation. So you have Axis Bank Foundation. Let me get to the Axis Bank Foundation. Yeah, okay, this is the Axis Bank Foundation. What I'm going to do is I'm going to come to the I'm going to come to the Axis Bank Foundation का क्या बोलते हैं उसको, फ्रंट पेज. ठीक है, axisbankfoundation.org, दैट इज द नेम ऑफ द एक्सिस बैंक फाउंडेशन का फ्रंट पेज पे आ जाता हूँ. सो आई कैन टेक यू फ्रॉम दैट. सी दीज वीडियोज व्हाट वी डू आर वेरी घरगोटी वीडियोज, मतलब घर का वीडियोज है. ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हम लोग एडिटिंग नहीं करते, हम लोग के पास टाइम नहीं है एडिटिंग करने के लिए. जहाँ पे मिल गया, अभी मैं किचन में बैठा हूँ, किचन में मैं वीडियो कर रहा हूँ. ठीक है, द आइडिया इज टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक वी वांट टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट. ओके, so this is the Axis Bank Foundation. This is the what they say purpose beyond profit. उन लोग का ये जो लो लाइन है,
purpose beyond profit. So Axis Bank Foundation is working towards impacting the lives of people and financially lives of people from financial and economic excluded community. So basically उन लोग का जो फोकस है, एक तो कम्युनिटीज़ का ऊपर फोकस है, दूसरा है कि जो कम्युनिटीज़ फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिक तो ज़्यादा करके फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का ऊपर उन लोग का फोकस है. यहाँ से दिखाई दे रहा है कि उन लोग का ज़्यादा करके फोकस एक्सिस बैंक फाउंडेशन का फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का ऊपर फोकस है. ठीक है, ओके. और इम्पैक्टिंग द लाइव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन लोग यूज़ कर रहे हैं, इम्पैक्टिंग द लाइव्स. ठीक है, तो दिस इज समथिंग यू नीड टू रीड अबाउट एंड अंडरस्टैंड. अनदर थिंग, पार्टनर्स, यहाँ पे उन लोग बोले कि एनजीओ पार्टनरशिप का साथ काम करते हैं. मेनी फाउंडेशंस आर देयर, लाइक फॉर इंस्टेंस रिलायंस फाउंडेशन एक्सेट्रा, दे डू नॉट यूज, दे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स, पर एक्सिस बैंक फाउंडेशन जो है वो एनजीओ पार्टनर्स का साथ काम करते हैं. एंड वी विल कम इन डिटेल अबाउट दिस एनजीओ पार्टनर्स लेटर ऑन. ठीक है, दिस इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सिस बैंक फाउंडेशन. उसका नाम अमिताभ चौधरी है, बट ही इज द एक्सिस बैंक फाउंडेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, सॉरी, ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक, नॉट द फाउंडेशन. फाउंडेशन एज अ फीमेल एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ. ठीक है, ओके. विजन मिशन में आ जाते हैं. विजन मिशन इज वेरी क्लियरली लेड डाउन हियर फॉर एक्सिस बैंक फाउंडेशन टू रीच आउट टू द मोस्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज. तो यहाँ पे विजन मिशन में वापस उन लोग यही बोल रहे हैं कि टू रीच आउट टू द मोस्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज एंड क्रिएट सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट. आप देखेंगे थ्रू आउट उन लोग का पेज में उन लोग सोशो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट का बारे में बात कर रहे हैं. सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, रादर इकोनॉमिक इम्पैक्ट का बारे में बात कर रहे हैं. एक्सिस बैंक इज टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक इम्पैक्ट. प्लीज कीप दिस इन माइंड. इट ऑल्सो इन्विसेजेस enhance employability of the able and disabled youth. तो डिजेबल यूथ उन लोग का विजन एंड मिशन स्टेटमेंट में उन्होंने कॉल आउट किया कि डिजेबल यूथ का साथ काम कर रहा है विद अ सिग्निफिकेंट हाई फोकस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट. तो डिजेबल यूथ का ऊपर काम कर रहे हैं एंड वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं. सो इन दियर विजन स्टेटमेंट इटसेल्फ इट इज दे आर हाईलाइटिंग दीज टू थिंग्स कि डिजेबल यूथ का साथ काम कर रहे हैं और वुमेन एम्पावरमेंट का साथ काम कर रहे हैं. दिस इज समथिंग यू नीड टू टेक नोट ऑफ. ठीक है, बिकॉज व्हेन यू आर सेंडिंग अ प्रपोजल प्लीज ऐड दीज वर्ड्स इनटू इट एंड ऑल्सो सी द थीमेटिक एरियाज. इफ यू आर working in these areas then you try to sort of mention these areas कि भाई मैं ये इसका ऊपर कर रहे थे. they are very clear here. It also envisages enhances employability of able and disabled youth. So employability of able and disabled youth and women empowerment, these are the two things they have put in the vision and mission. Let us go further in the vision and mission and see values का बारे में है वगैरह वगैरह. ऑन द रोल ऑफ वुमेन एंड इज लाइवलीहुड स्ट्रैटेजी. तो ये लाइवलीहुड जो है ना, लाइवलीहुड आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक का काफ़ी इसमें आता है लाइवलीहुड. व्हाट वी विल डू, विल जंप इनटू द प्रोग्राम्स टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रोग्राम्स. और इसमें दो प्रकार का प्रोग्राम्स आ रहे हैं, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड लेगेसी पार्टनरशिप्स. लेगेसी पार्टनरशिप्स मतलब उन लोग का जो पुराना प्रोग्राम्स है उसको लेगेसी पार्टनरशिप्स बोलते हैं या लेगेसी प्रोग्राम्स बोलते हैं. Don't go into legacy partnerships and programs because normally those are the programs they don't want to continue with, but are just continuing with till it comes to a logical and sustainable end. ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा करके ये legacy programs में नहीं जाना चाहिए, legacy partnerships में नहीं जाना चाहिए. हम लोग sustainable livelihoods में जाना चाहिए ना, sustainable livelihood. तो यहाँ पे sustainable livelihood में आप देखेंगे तो उसका पूरा का पूरा फाउंडेशन का पूरा एक्टिविटी जो भी करते हैं उन लोग सस्टेनेबिलिटी लाइवलीहुड्स का ऊपर से कर रहे हैं. मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स का हिसाब से उन लोग काम कर रहे हैं. यहाँ पे उन लोग का दो तीन थीमेटिक एरियाज है. एक तो है वाटरशेड मैनेजमेंट, यहाँ पे जो दिख रहा है वाटरशेड मैनेजमेंट है. ठीक है, यहाँ पे वाटरशेड मैनेजमेंट है. दूसरा है लाइफ स्टॉक इन्हांसमेंट. लाइफ स्टॉक इन्हांसमेंट यानी कि गोत्री और पोल्ट्री गोट्री. ठीक है, लाइफ स्टॉक इन्हांसमेंट आ गया. यहाँ पे आ गया वोकेशनल ट्रेनिंग. तो उन लोग वोकेशनल ट्रेनिंग का ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं. वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पे आ गया, वोकेशनल ट्रेनिंग. ठीक है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग पे एम्फोसाइज कर रहे हैं उन लोग यहाँ पे. ठीक है, और उसके बाद जैसे उन लोग का विजन स्टेटमेंट में दिया था लाइवलीहुड ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज. तो लाइवलीहुड ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यू कैन सी दिस लाइवलीहुड ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज का ऊपर फोकस कर रहे हैं. तो बेसिकली देखने जाएंगे तो इन लोग का 4 एंड प्लीज रिमेंबर दिस 4 1 2 कितना है 3 4 हाँ 4 एरियाज ऑफ दे हैव गॉट 4 फोकस एरियाज. First is watershed management, second thing is livestock enhancement, third one is vocational training and fourth one is livelihood of persons with disabilities. ठीक है, so now we will try to enter each of these things and see क्या कर रहे हैं. watershed management में उन लोग क्या कर रहे हैं. तो watershed management में भी
वाटरशेड मैनेजमेंट में भी उन लोगों ने सस्टेनेबल लाइवलीहुड का अंदर डाला है, वाटरशेड मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो मतलब उन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग का मेन एम यही है कि वाटर यानी कि पानी as you know, without pani agriculture will not happen, without water agriculture will not happen. So they are looking at watershed management and they are trying to improve agricultural productivity and therefore economic income, economic situation of the farmers. ठीक है, सो वाटरशेड मैनेजमेंट इक्वल्स टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू इकोनॉमिक इन्हांसमेंट। ठीक है, सो दिस इज देयर थिंकिंग। ठीक है, उन लोगों को इकोनॉमिक इन्हांसमेंट करना है, कोई भी उन लोग जो भी काम करते हैं दे आर लुकिंग एट द इकोनॉमिक इन्हांसमेंट ऑफ द बेनिफिशियरीज, देयरफॉर दे आर डूइंग वाटरशेड मैनेजमेंट सो दैट द फार्मर्स हैव इनफ ऑफ वाटर, सो दैट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, सो दैट दे इकोनॉमिकली दे ग्रो और दे कम अप। यहाँ पे वुमेन का ऊपर काम कर रहा था, जो विजन स्टेटमेंट में भी उन्होंने वुमेन का मेंशन किया था, जिक्र किया था वुमेन का बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट का बारे में जिक्र किया। यहाँ पे दिख रहा है कि वुमेन का ऊपर उन लोग ज़्यादा करके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का ऊपर काम करे। तो वुमेन दे आर वर्किंग विद वुमेन, महिला का साथ काम कर रहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ऊपर, गुड। ठीक है, लेट्स गो अहेड। ठीक है, दिस इज द वन थीम एरिया वेयर दे सेड अंडर सस्टेनेबल लाइवलीहुड, वाटरशेड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का अंदर उन लोग वुमेन का बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद उन लोग का वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट काफ़ी कुछ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर रहेगा। ठीक है, उसका बाद उसका आ गया लाइफ स्टॉक इन्हांसमेंट्स। लाइफ स्टॉक इन्हांसमेंट में ऑब्वियसली उन लोग गोत्री और पोल्ट्री का बारे में फोकस करें रूरल एरियाज में, और उन लोग का ये कहना है कि भाई लाइफ स्टॉक रेयरिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूरल हाउस होल्ड विच हेल्प्स प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ यू ऑल हु आर वर्किंग इन रूरल एरियाज नो दैट लाइफ स्टॉक रेयरिंग, ठीक है, द livestock rearing is an integrated part of rural households which helps provide an alternative source of income। ठीक है, ओके। सो लाइवस्टॉक का ऊपर उन लोग का एम्फेसिस है। उसका बाद वापस आ जाते हैं यहाँ पे, तो उसका बाद यहाँ पे आ गया वोकेशनल ट्रेनिंग। जैसा मैं बोला था वोकेशनल ट्रेनिंग का ऊपर एम्फेसिस है। अगेन उन लोग वोकेशनल ट्रेनिंग का यही हिसाब से देख रहे हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग शुड इंक्रीज द इकोनॉमिक एम्प्लॉयबिलिटी एंड देयरफॉर इंक्रीज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बेनिफिशरीज यानी कि द यूथ। ठीक है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग इसलिए उन लोग सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स का अंदर डाल देते हैं। सो ऑल द एक्टिविटीज वट एवर दे आर डूइंग इज टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द बेनिफिशरीज। तो वोकेशनल ट्रेनिंग को भी वही हिसाब से देख रहे हैं कि जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग लिया है उन लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उन्होंने कुछ स्टेटिस्टिक्स दिया है, गो थ्रू दिस। आपको प्रपोजल लिखना है तो ये सब वर्ड्स उठा के यहाँ से वर्ड्स उठा के डालना है। ये हो गया आपका तीसरा वाला इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइवली यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग। अभी आगे जाते हैं, आगे जाएंगे तो ये किधर आ गए हम लोग, सॉरी, ओके। यहाँ पे आ गया लाइवलीहुड पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जैसा उन लोग का विजन स्टेटमेंट में ही था, लाइवलीहुड विद फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। हम लोग का 12 मिनट हो गया वीडियो करके, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा छोटा करने का, 15 मिनट में ख़त्म करना है। ठीक है, ये लाइवलीहुड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज जैसा उन लोग का विजन स्टेटमेंट में आया था कि दे ऑल्सो लुक एट द लाइवलीहुड ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उन लोग का वो एम्फेसिस है। और अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ऑल इन ऑल आप देखने जाएंगे ना, लाइवलीहुड का जो वर्ड उन लोग यूज कर रहे हैं, बार बार यही वर्ड यूज कर रहे हैं, उसको आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इक्वल्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब उन लोग का हिसाब से लाइवलीहुड मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं उन लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देख के कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर अबाउट प्रोग्राम्स और थीमेटिक एरियाज ऑफ प्रोग्राम्स। इसका आगे हम लोग जाते हैं, इसका आगे हम लोग पार्टनर्स देख रहे हैं। तो पार्टनर्स है अगेन लेगेसी पार्टनरशिप में नहीं देखना है, जोग्राफिक आउटरीच, जोग्राफिक रीच में उन लोग का कुछ मतलब अभी तक वेबसाइट में कुछ नहीं है। सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स में देखेंगे, यहाँ पे अलग अलग पार्टनर्स है। इसमें आप देखेंगे टाटा ट्रस्ट इधर आ गया है, और भी जगह पे आपको टाटा ट्रस्ट मिलेगा या दूसरा कुछ ट्रस्ट मिल जाएगा। एंड टू अंडरस्टैंड दैट CSR में जब भी व्हेन यू हैव अ partnership with another CSR company, that is considered to be best practices under CSR law. So they ensure that they are partnering with other trusts and other CSR also to provide certain benefits to their beneficiaries. ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी कोई संस्था है, वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस, many of you must be knowing these organizations, and there are also some trust. ठीक है, ये ब्राइट फ्यूचर अपना ही है, अब तो मेंबर का ऑर्गेनाइजेशन है ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, SSP है, सर्व शिक्षा प्रयोग। ठीक है, मार्जिन टू मेन स्ट्रीम, वेरी गुड, BF है। ठीक है, लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच अंबुजा फाउंडेशन एंड अदर CSR ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। रिमेंबर दे आर ट्राइंग टू
कोलैबोरेट। सो आपका पास ऑलरेडी आप अंबुजा फाउंडेशन से फंडिंग मिल रहा है या टाटा ट्रस्ट से फंडिंग मिल रहा है, और एक उन लोगों का प्रोजेक्ट है टाटा ट्रस्ट का, यहाँ पे देखा ये प्रोजेक्ट है टाटा ट्रस्ट का, उन्होंने ऑलरेडी कंबाइन किया है ये प्रोजेक्ट का साथ, मतलब सॉरी पार्टनरशिप किया है। सब टाटा ट्रस्ट के साथ उन लोग का अच्छा क्या बोलते हैं उसको, दे हैव गॉट अ गुड रैपो विद टाटा ट्रस्ट। तो आप लोग को ऑलरेडी टाटा ट्रस्ट से पैसा मिल रहा है, तो इंश्योर दैट आपका प्रपोजल में टाटा ट्रस्ट का बारे में आप लिख लेना, ताकि क्या होता है कि उन लोग को समझ में आ गया हाँ भाई दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज गॉट मनी फ्रॉम टाटा ट्रस्ट, सो इट विल बी गुड। ठीक है, नॉलेज कॉर्नर, गैलरी, मिलियंस ऑफ थैंक्स, प्रोग्राम के बारे में, तो दिस वाज इन अ शॉर्ट अबाउट एक्सिस बैंक फाउंडेशन। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है कि एनीबडी वांट्स टू राइट टू एक्सिस बैंक फाउंडेशन, ठीक है, और एनीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट मीन्स वांट्स टू अप्लाई टू एक्सिस बैंक फाउंडेशन, प्लीज कांटेक्ट मी, मुझे कांटेक्ट करो। ठीक है, आई विल गाइड यू एज टू किसको कांटेक्ट करना है एक्सिस बैंक फाउंडेशन में, ठीक है, किसको कनेक्ट करना है, क्यों कनेक्ट करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जनता will see your proposal, see your appeal letter, and then only we will help you to connect to Axis Bank Foundation. So basically you all can, of course you all can directly go and connect to Axis Bank Foundation, कुछ इशू नहीं है उसका अंदर, पर जिसको मतलब we also can help you to get in touch with Axis Bank Foundation, but you need to we need to work with you, so you need to send us your proposal, you need to send. But before doing all that, if you want to connect with Axis Bank Foundation, please connect with us and we will sort of connect you to Axis Bank Foundation. These are some of the Axis Bank Foundation annual reports. यहाँ पे उन्होंने कितना पैसा दिया है उन्हें दिया है, इसलिए मैं इन्हें खोल रहा हूँ, but you can go through it before writing a proposal for Axis Bank Foundation or attempting. Please go through their website in detail. ठीक है, so Axis Bank Foundation basically gets its monies from Axis Bank and its subsidiary industries. ठीक है, financial overview, partners, geographic sustainable livelihood programs, about us, vision, mission, board of trustees, CEOs contact. ठीक है, इसका अंदर एनुअल रिपोर्ट पे कुछ पैसा का बारे में बात नहीं किया है। नॉलेज का न्यूज एंड पार्टनर्स, सस्टेन लेगेसी पार्टनरशिप्स में भी उन्होंने कुछ धन फाउंडेशन, ये लेगेसी पार्टनरशिप जो मतलब प्रीवियसली उन्होंने पार्टनरशिप किया इन लोगों के साथ, इसमें जाके कुछ फ़ायदा नहीं है। एक दूसरा एक था अपने को, आई एम ट्राइंग टू सर्च फॉर उन लोग का बाकी का विजन, मिशन, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, सीईओस का ना। ओके, फेयर इनफ। सो दिस इज अबाउट एक्सिस फाउंडेशन, एक्सिस बैंक फाउंडेशन। ओके, एंड या एंड वी विल बी इन टच। ठीक है, इफ यू नीड टू कॉन्टैक्ट एक्सिस बैंक फाउंडेशन, प्लीज लेट अस नो। ठीक है, तो यहाँ पे उन लोग का कुछ स्टेटिस्टिक्स है, सक्सेस स्टोरीज है, 21 स्टेट्स में काम कर रहा है, 10,000 विलेजेस में काम कर रहा है, 515 ब्लॉक्स में काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, उन लोग का सब सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे है, अच्छा सी दी है। ठीक है, सो आई विल स्टॉप हियर। एनी ऑफ यू ऑल वांट टू कनेक्ट टू एक्सिस बैंक फाउंडेशन, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, वी विल वर्क टुगेदर, इट्स अ गुड फाउंडेशन। जैसा कि मैंने उसको बोला और जैसा मैंने आपको पहला बोला है कि इसका जो बजट आउटले है अबाउट 250 करोड़ है। ठीक है, तो प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नॉलेज काउंटर में क्या है इसका रे? नॉलेज कॉर्नर, द स्टोरी, कॉम्पेंडियम ऑफ 2 मिलियन। ठीक है, ओके, यहाँ पे आई एम एक्चुअली सर्चिंग फॉर समथिंग ऑन एक्सिस बैंक, यू नो, फॉर टू शो यू दैट नो वेरियस उन लोग का म्यूचुअल फंड डिवीजन, उसका अलग अलग डिवीजन सब लोग ये कर रहे हैं। दिस इज द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज फॉर एक्सिस बैंक। ओके, ध्रुव शाह, शी इज द सीईओ फॉर एक्सिस बैंक फाउंडेशन, ध्रुवी शाह। ठीक है, शी हैज बीन सीईओ फॉर मेनी इयर्स इन एक्सिस बैंक फाउंडेशन, वेटरन सोशल वर्कर है वो। ठीक है, बट बिफोर कनेक्टिंग टू एनीबडी प्लीज गेट इन टच विद अस। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली ऑल्सो कनेक्ट, देयर इज नो इशू ऑन दैट, बट वी कैन हेल्प यू आउट। ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू। ये कहाँ पे गए रे? अबाउट अस। ठीक है, थैंक यू।